آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 249 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ کیروسین اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بتدریج 18 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ یہ لاگو ہوں گی اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ ہے اور کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 18 روپے فی لیٹر اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ 11 بجے سے یہ لاگو۔ اب آپ کو بتائیں کہ معاشی تجزیہ کار عابد سلیحری انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 249 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ کیروسین اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بتدریج 18 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ معاشی تجزیہ کار عابد سلیحری اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگر ہر 15 دن کے بعد بڑھائی جاتی ہیں تو شاید اس کے جو تکلیف اثر ہے عوام پہ آج اچانک 35 روپے پر لیٹر قیمتوں میں اضافے کا وہ اتنا زیادہ نہ ہوتا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ اب ڈالر کی قدر میں اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد اب IMF کی جو ڈیل ہے وہ صرف ایک منی بجٹ کی دوری پہ ہے۔ ایک منی بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کا IMF کا پروگرام بحال ہو جائے گا، جو کہ اس وقت بہت اہم ہے اگر پاکستان ڈیفالٹ سے بچنا چاہتا ہے۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرول پمپس کی بندش نے شہریوں کو پرسکون چھٹی کے دن کو اضطراب میں تبدیل کر دیا۔ شہری پیٹرول کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ آپ کو بتائیں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرول پمپس کی بندش نے شہریوں کی پرسکون چھٹی کے دن کو اضطراب میں تبدیل کر دیا ہے۔ شہری پیٹرول کی تلاش میں مارے پھرنے لگے ہیں۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں صبح ہی اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث لوگ مارے پھر رہے ہیں پیٹرول کی تلاش میں۔ تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اچانک سے 35 روپے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد جو شہریوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اچانک سے پیٹرول ایک تو مہنگا کرنے کا اعلان کیا گیا اور دوسری جانب شہریوں کی جو مشکلات کا سامنا وہ یہ ہے کہ کراچی کے مختلف جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت ڈیفینس کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل سوار ہیں، بالخصوص پیٹرول جو ہے وہ زیادہ تر موٹر سائیکل سوار استعمال کرتے ہیں، ان کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ جب پیٹرول پمپ بند ہوئے ہیں تو وہ پیٹرول کی تلاش میں جو ہے وہ سرگردہ ہیں۔ آپ ہی بتائیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور پیٹرول کی تلاش میں کتنی مشکلات کا سامنا ہوا اور 35 روپے مہنگا کر دیا گیا؟ ہم سبزی منڈی سے آ رہے ہیں، پیٹرول کہیں نہیں مل رہا ہے اور بڑی پریشانی ہے، کام پہ جا رہے ہیں اور پیٹرول نہیں مل رہا، ہم کیسے جائیں گے یہ بتائیں؟ اتنا مہنگائی ہو گئی ہے تو اس مہنگائی میں کیا کریں گے؟ مزدور آدمی تو پس رہا ہے بالکل۔ ہم پیٹرول ڈھونڈتے یہاں اب پیٹرول آپ دھکا لگا کے ہم گھر جائیں گے۔ اور 35 روپے جو مہنگا کیا گیا ہے اب یقینی 250 روپے پہ پہنچ جائے گا، کیا کہیں گے اس پہ؟ سر یہ تو غریب آدمی تو کچھ نہیں کر سکتے، گھر پہ بیٹھیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پیٹرول ہوگا تو گھر پہ کام پہ جائیں گے تو نہیں تو بیٹھے میں، اور کرایہ اتنا مہنگا ہے اور مہنگائی میں کیا کریں گے آدمی؟ جی بالکل، یہ تھے شہری جن کا کہنا ہے کہ دور دراز سے یہ پیٹرول کی تلاش میں جو ہے وہ سرگردہ بھی ہیں اور یہی نہیں بہت سارے شہری دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ موٹر سائیکل پر پیٹرول کی تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کو پیٹرول نہیں مل کے دے رہا کیونکہ اچانک سے کراچی میں جو ہے وہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے جو شہری ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب پیٹرول مہنگا بھی کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے وہ پیٹرول کے مد میں اخراجات کو پورا کر سکیں گے، اور دوسری جانب پمپ بند ہونے کی وجہ سے ان کی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور پیٹرول پمپس بند ہونے کے عمل نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اچانک پیٹرول پمپس بند ہونا تشویشناک ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول مہنگا ہونے سے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ گورنمنٹ نے 35 روپے بڑھایا ہے، ایک تو اوپر سے مہنگائی بھی ہے، اوپر سے انہوں نے پیٹرول بڑھایا اور بنا وجہ بڑھایا ہے۔ پوری رات بولتے رہے نہیں بڑھے گا، صبح بڑھے۔ اور دوسری بات ہے جب پیٹرول بڑھایا ہے تو اس کا اطلاق 11 بجے سے ہوگا۔ یہاں ہم پمپ پہ آئے ہیں، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، لوگ ایسے پریشانی سے جا رہے ہیں
इन मालकानों ने पंप बंद किया हुआ है। हुकूमत ने दोबारा से पेट्रोल जो है कीमत में इजाफा कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए सोचें, आवाम को रिलीफ दें। आए दिन पेट्रोल बढ़ाना, जीना आराम करना, क्या कर रहे हैं ये? असल में आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं रही ना। जब रुपए की वैल्यू ही नहीं है तो पेट्रोल नहीं बढ़ रहा, आपके रुपए की वैल्यू घट गई है। ये लोग आए तो इनको भी मजबूर कर दिया कि हाँ जी चलो पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ। अब उन्होंने फौरी तौर पे बढ़ाए हैं। अभी मैं टीवी पे सुन के आया हूँ। 25,000 रुपये कमाने वाला जो बंदा है 10 से 15,000 रुपये उसका जो है ये एक्सपेंस जो है ये पेट्रोल के अंदर खर्च हो जाता है। वो बचाएगा क्या और खाएगा क्या? मैं खड़ा हूँ तो ये पेट्रोल जो है ना बहुत महंगा होने वाला है। तो हम लोग अभी जो है ना गाड़ी को जो है ना चला रहा है, इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा कि कैसा बंदा भरे यार। मैं आधे घंटे से परेशान हूँ। हाँ, 3-4 पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर हुकूमत पर फट पड़े। फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिसके बाद मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कितनी मुश्किलात होंगी पेट्रोल की कीमत में इजाफे से? पेट्रोल का मुश्किल तो यकीन मान के सरासर तेरे को पता है कि मुश्किल है, जीना ही मुश्किल है इस बार। जब हमारे वज़ीर ख़जाना था मिफ्ता इस्माइल, अब तो खैर वो नहीं है, पहले वही कह रहा था कि एक आम आदमी 120 रुपये का लीटर किस तरह डालेगा, और अभी 240 रुपये तक लीटर पहुंच जाएगा, तो अब आम आदमी किस तरह डालेगा। आटे का आप खुद सोचो, प्याज का तुम पता कर लो, गैस तो बिल्कुल इलाके में गैस है नहीं। इख्तिजाज हम लोग जितना भी कर रहे, लेकिन आज अभी यकीन दहानी करा लेते, फिर कल आकर कुछ पता नहीं चलते, क्योंकि ना गैस है ना बिजली है। बिजली का लोड शेडिंग डबल हो गया और महंगाई दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे अल्लाह ताला रहम करे हमारे अमाल पे। यकीन मान के कभी कभी तो हमारा दिल चाहता है कि खुदकशी कर ले, सही बेहतर है, क्योंकि मुश्किल है। पाकिस्तान से भी जलीलिस्तान बन गया। यकीन मान हमारे जो हुक्मरान है पहले क्या कह रहे थे, कितने बड़े बड़े बातें कर रहे थे, महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान। अब बिल्कुल ऐसी लापता है कि पता नहीं उसको किसी ने गैब कर दिया या किधर इंडिया भेज दिया। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद शदीद परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने आवाम से वादा किया था वो महंगाई को कंट्रोल करेगी, लेकिन हुकूमत की जो अदम संजीदगी है वो दिखाई दे रही है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे। आलमी मार्केट में जो पेट्रोल है, रिक्शा ड्राइवर्स का ये कहना है कि वो कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से यहाँ पर जो रिक्शा सवारी करते थे, जो गरीब अफराद थे, जो सस्ती सवारी समझते रिक्शे को, अब उसके किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। जी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा होशरुबा है। कीमत में इजाफे से मुल्क भर में महंगाई का तूफान आएगा। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बहुत रुपया इजाफा है, 35 रुपए लीटर मायने रखता है। लेकिन अभी जो IMF के जो कर्ज चले पहले ही दबे हुए हैं और फिर हमारा कर्ज लेना मजबूरी है, उनकी शराइतें हैं, उन शराइतों पे हम पहुंच चुके हैं कि वो शराइत हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी, वरना इस मुल्क का पहिया भी बहुत मुश्किल चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि देखें, ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा जो रेट बढ़े हैं। इससे दालों की कीमतों में भी इजाफा होगा, चावल की भी, क्योंकि इसकी वजह है कि मेन हब कराची है, यहीं से इम्पोर्टेड माल जो दालें आती है वहीं पूरे कराची में से लेकर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। जो पंजाब से माल आता है, राइस वगैरह, वो भी मुतासिर करेगा, सिंध से भी मुतासिर करेगा और किरायों में इजाफा हो जाएगा। महंगाई और ज्यादा हो रही है। और मैं यही कहूंगा कि जो मार्केटें हैं होलसेल की 7 बजे बंद की जाएं, 8 बजे रिटेल शॉप बंद होनी चाहिए और शादी हाल 10 बजे बंद होने चाहिए। इससे भी हम काफी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो महंगाई का बम बार बार गिर रहा है, इसमें हमें हर पाकिस्तानी को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हम क्या। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने ताजिर बरादरी को भी तशवीश मुब्तला कर दिया। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर कहा कि आम आदमी को एक वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। आज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 35 रुपया फी लीटर जो इजाफा किया है, इसे हम यकसर मुस्तरद करते हैं। पहले ही एक महंगाई का तूफान आया हुआ है और इसकी कीमत के पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह से मजीद महंगाई में इजाफा होगा। आम आदमी एक वक्त उसे रोटी नसीब नहीं हो रही। इस महंगाई का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा और हुकूमत इस पे नजरसानी करे और फिलफौर इस फैसले को वापस ले ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके।
वरना हुकूमत के खिलाफ सख्त किस्म का अवाम एहतजाज करेगी और ये एहतजाज इस किस्म का होगा कि हुकूमत को मजबूर कर देगी अपने। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर नूर खान कहते हैं इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से, जो इस वक्त नूर खान के हमरा मौजूद हैं। जी हबीब। बिल्कुल, देखिए, हुकूमत की जानिब से आज सुबह छुट्टी के दिन कराची समेत मुल्क भर के अवाम पर जो है वो बम गिराया गया है और वो बम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में जो आया है 35 रुपये का इजाफा किया गया है डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में, जबकि केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये का इजाफा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से इस इजाफे को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो सदर हैं नूर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, हुकूमत की जानिब से 35 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पहले ही जो है वो मुश्किलात और परेशानी में था, अब किस तरह देख रहे हैं इस इजाफे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू 24 न्यूज़। ये बिल्कुल इजाफा जो किया गया है रात के अंधेरे में, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। पहले ही हमारी मईशत जो है बुरी तरह फैलाप हुई है, कोई काम नहीं है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, एलसीज खुल नहीं रहे, इंपोर्ट भी बंद है, एक्सपोर्ट भी बंद है और मुल्क की हालत इंतहाई नाजुक। गरीब लोग बिल्कुल परेशान हाल हैं, लेकिन इन्होंने इतना अंधेरे रात में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करके, ये 35 रुपये नहीं होता है, ये मैं आपको पूरी आवाम को बता दूं कि 35% जब इजाफा होता है उसमें टायर, चाय, रोटी, खाना, राशन, दवाइयाँ, आयल और सारी चीज़ें 35% और महंगी हो जाती हैं। तो ये कोई भी गरीब आदमी ना दवा ले सकेगा, ना आटा ख़रीद सकेगा। ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। पहले ही हम बुरी तरह हमारी मईशत फैलाप हो चुकी है। हम अभी चूँकि इतवार है, सारे दोस्त और हमारी एसोसिएशन सोई हुई, सारी छुट्टी का दिन है, तो हम कोशिश करेंगे कल हम अपने पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर तंजीमों का इजलास बुलाएं और इस पे सख्त रद्द अमल दें। बिल्कुल, नूर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो है वो एक बड़े चैलेंज की तरह सामने आएगा और कारोबार जो पहले ही इस वक्त मुश्किलात और परेशानियों का शिकार है उसको मज़ीद धचका लगेगा। तो हुकूमत से फिलफौर इस इजाफे को, ना सिर्फ इजाफे को मुतालबा कर रहे हैं कि वापस लिया जाए, बल्कि साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स को खास तौर पर जो है वो इसमें रिलीफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कश्मीर रोड पर एहतजाजी मुजाहरे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी शख्सियात शिरकत करेंगी। तफसीलात बताएंगे जवाद आसफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर रोड पर, जहाँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरे का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। उसकी तैयारियाँ जो है वो ज़ोर शोर से जारी हैं। इस मुजाहिरे में जो ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग इंतज़ाम किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम यूथ कराची विंग के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, खिज़र खान। उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि तैयारियाँ कैसी चल रही हैं और क्या मकसद है इस मुजाहिरे का? इस वक्त शहर भर से जो है वो काफ़िले यहाँ पर आ रहे हैं। हमने टाइम दिया हुआ है 2:30 बजे का। यहाँ पर एक पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। इस वक्त हम इस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं कि दुनिया के अंदर ये एक चीज़ हुई है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है और हर मुसलमान के लिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला इस किताब का ज़िम्मा खुद लेता है, लेकिन यकीनन एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा भी ज़िम्मा है कि अगर कहीं पर भी दुनिया के अंदर इस कुरान हकीम की बेहुरमती की जाएगी तो इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ कर खड़े होंगे और नेशनल फोरम्स के ऊपर और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपना मुकम्मल एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि आज ये जो प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया है, ये जनाब सिर्फ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। और यहाँ पर आप आज इस स्टेज पर देखेंगे कि इंशाअल्लाह आज इस हमारे ज़ेर एहतमाम प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातें मौजूद होंगी। मुख्तलिफ फ़िक़्ह नज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और ये इंशाअल्लाह प्रोटेस्ट हम कामयाब करेंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ये सिर्फ एक जमात का प्रोटेस्ट नहीं है, मुसलमानों का। इसमें मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातें शिरकत करेंगी, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग भी शिरकत करेंगे और कुरान पाक की जो दुनिया भर में बेहुरमती की जाती है उसके ख़िलाफ़ एक पुरअमन जो एहतजाजी है मुजाहिरे यहाँ पर किया जाएगा। जी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने बलोचिस्तान के इलाके लसवेला में मुसाफिर बस के हादसे में 40 कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। तफसीलात जानेंगे शाज़िब हुसैन से।
جی بالکل، اس وقت میں آرٹس کونسل میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر شازیہ مری. ان کے اس حوالے سے جانتے ہیں کیونکہ آج بلوچستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. 40 سے زائد افراد جو ہے جان کی بازی ہار گئے. کوئٹہ سے کراچی بس آ رہی تھی، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. بلوچستان کے راستے ایسے ہیں وہاں پر اگر یہ حادثہ رونما ہو جائے تو امدادی کارروائیوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں بظاہر خود وہاں پر جاتا ہوں اکثر و بیشتر بلوچستان، تو دیکھا جاتا ہے وہاں پر امدادی ٹیمیں جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہوتی. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس پر بہت زیادہ دکھ ہے. میرا خیال ہے کہ اس دکھ کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یقیناً 40 جانوں کا ضائع ہونا اور اس طرح حادثے میں چلے جانا، اور ابھی آپ نے کہا کہ 40 ہیں، اللہ کرے کہ بس اور زیادہ ایسی خبر نہ آئے، لیکن یہ کہ 40 بھی جو ہے وہ بڑی قیمتی جانیں ہیں، اور اس طریقے سے چلے جانا یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. سب سے پہلے تو میں ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ اظہار تعزیت کروں گی اور اس پر گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہوں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ امدادی کام، بالکل یہ ہو بھی سکتا ہے کہ سہولیات جو ہیں وہ اس جگہ پر نہ ہوں. کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر حکومت، میں تو کسی بھی حکومت کو نہیں کہوں گی کہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ اچھا کام کرے. ہو سکتا ہے کہ ہر وقت دور میں یہ کوشش کی گئی ہو، لیکن چونکہ بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہ علاقائی اعتبار سے بڑا وسیع علاقہ ہے، اور ایک ٹاؤن ہے وہ دوسرے ٹاؤن سے پتہ نہیں کتنے 100 میل کی دوری پر ہے. تو اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں بھی جو ملٹیپل کرائٹیریا ہے اس میں انورس پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ بلوچستان کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ علاقائی اعتبار سے یوں تو ہم کہتے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے پنجاب بڑا صوبہ ہے، لیکن میری نظر میں تو سب سے بڑا صوبہ اگر علاقے کے اعتبار سے کہا جائے تو وہ بالکل بلوچستان ہے. تو اتنا بڑا صوبہ، اتنا بڑا علاقہ، اور اس کے اندر فیسلٹیز یقیناً مزید کی ضرورت ہے. اور بس یہی کہوں گی بہت دکھ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس حادثے میں جن کی جانیں گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بحیثیت پاکستانی مل کر اس ملک کے اندر اور زیادہ فیسلٹیز کا قیام کریں. جی بالکل، امدادی کارروائیوں کا وہاں پر سلسلہ جاری ہے. ریسکیو حکام کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جو اس حادثے میں جو ہے جو افراد متاثر ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو عیدی سرد خانے جو کہ سوراب گوٹ پر قائم ہے وہاں پر لایا جائے گا، لیکن یہ وقت ابھی تک متعین نہیں کیا جا سکا کہ کس وقت ان کو کراچی ان کی لاشیں منتقل کی جائیں گی. تاہم وفاقی وزراء کی جانب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. جی ترجمان سندھ حکومت درشہ مرزا وہاب کہتے ہیں کہ یوتھ کے لیے آرٹس کونسل کراچی کی بے شمار خدمات ہیں. آرٹس کونسل نوجوانوں کو بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. ترجمان سندھ حکومت درشہ مرزا وہاب نے یہ کہا ہے. تفصیلات کیا ہیں سید زبیر راشد سے جانیں گے. جی زبیر. جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ مشیر قانون سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب میرے ساتھ موجود ہیں، اور آرٹس کونسل کراچی میں جاری پاکستان یوتھ فیسٹیول کا آج آخری روز ہے. بیرسٹر مرتضی وہاب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے فیسٹیول کتنے خوش آئند ہیں. اور سر یہ بتائیے گا، احمد شاہ صاحب کی کاوشوں کے تحت جو ہے طلبہ و طالبات ایک چھت تلے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے انہوں نے، اس فیسٹیول کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یوتھ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے. پاکستان کی سبسٹینشیل پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پر مبنی ہے اور گیم چینجر ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے لیے. آرٹس کونسل جو ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے مرد کو، عورت کو، ٹرانسجینڈرز کو، یوتھ کو، ایک بڑا خوشائند چیز. اور میں سمجھتا ہوں وہ انکلوزیو معاشرہ، پروگریسو معاشرے کی بنیاد اس کے بیسس پر رکھی جا سکتی ہے. اور یوتھ کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہوگا جس کے اندر ان کو اسکل سکھائی جا سکتی ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ایک روشن خیال معاشرہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. اور آرٹس کونسل کے ان تمام اچھے انٹرونشنز پہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. سر آپ یوتھ کو خود ویسے سپورٹ بھی کرتے ہیں، شانہ بشانہ بھی رہتے ہیں، اور آپ نے اعلیٰ تعلیم بھی بڑے ایک زبردست ادارے سے حاصل کی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ بڑا ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں یوتھ کی اسٹیبلشمنٹ پہ یا یوتھ کو پروان چڑھانے پہ؟ میں بھی یوتھ ہوں، آپ بھی یوتھ ہیں، آپ بھی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، میں بھی کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میسیج ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کر اپنے معاشرے کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور میں بڑا اوپن انویٹیشن دینا چاہوں گا یوتھ کو کہ جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں ان کو میری مدد چاہیے، میری سپورٹ چاہیے، بحیثیت سیاسی کارکن کے، بحیثیت مشیر قانون کے، سیاسی کارکن کے، جو کچھ بھی کر سکا انشاءاللہ ان کے لیے کروں گا. آپ کو بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ
यूथ के शाना बशाना रहता हूँ, यूथ के लिए काम हम मज़ीद भी करने जा रहे हैं और आर्ट्स काउंसिल की इन काविशों को बहुत सराहते हैं। और जिस तरीके से एक महफिल बल्दिया उज़्मा कराची में फौती कोटे पर मुलाजमतों की फ्राहमी का सिलसिला 2018 से इल्तवा का शिकार है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की अगर बात की जाए तो जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं इनके या जो फौत हो चुके हैं उनके लवाहिकीन के साथ और रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ उनको वाजिबात की अदायगी नहीं जा रही। दूसरा बड़ा सितम यह है कि 2018 से बल्दिया उज़्मा कराची में जो फौतगी कोटा था उस पर 400 के लगभग मुलाजमतें दी जानी थी, वो सिलसिला भी इल्तिवा का शिकार है। अगरचे इस सिलसिले में कुछ हरकत हुई थी और कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी, लेकिन नतीजा सिफर है। हमारे साथ मौजूद हैं सौदाकार यूनियन सजन यूनियन के सरबरा KMC के जुल्फ़िकार शाह, इनसे बात करते हैं। शाह साहब फरमाइएगा, बड़ा अलमिया है कि पूरी लाइफ देने के बाद एक शख्स जब रिटायर होता है तो उसको वाजिबात भी नहीं मिल रहे और फौतगी कोटे पे भी अमल नहीं हो रहा, क्यों? देखें जी, ये सिलसिला तो 2016 का है। 2016 से ये सिलसिला वाजिबात का मामला था। अब 2018 से जो है वो 400 के करीब हमारे मरहूम मुलाजमीन की तादाद पहुंच गई है। उनके बच्चों को अभी तक एक तो वाजिबात नहीं मिले, दूसरा इन्हें जो है अभी तक मुलाजमतें नहीं मिली। इनके केस फाइनलाइज हो गए हैं, 1 साल से तो इनका केस फाइनलाइज हुआ है और उस सिलसिले में इंटरव्यू का मरहला और तमाम कागजात की छानबीन भी हो गई है। अभी आपकी जानिब से भी कुछ दिन पहले ख़त भी लिखा गया था और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई थी आपकी, तो उसमें क्या मामला, रुकावट कहाँ है? देखें जी, मैं 3 दफ़ा मेरी मौजूदा मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जो है हमारे शजात हुसैन साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, इनसे मुलाकात हुई। उस वक्त फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं हमारे KMC के गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो साहब भी मौजूद थे और मैंने उस वक्त जो कमेटी की, हमारे फौतगी कोटे की कमेटी के सरबराह जो हैं वो सैयद नजमुज़्ज़मा साहब जो हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और इस सिलसिले में हमने ख़त किताबत भी की है, मीटिंग भी की है। हमने ये कहा है कि ये जो लोगों को जो है ना, एक तो आप लोगों ने ज़ाती पसंद नापसंद पे 34 ऐसे केसेस हैं जिन्हें ज़ायदुल मियाद करार दिया गया, जिनको डिपार्टमेंट ऑन कर रहे हैं लेकिन HRM ऑन नहीं कर रहा। हमने कहा है कि इन्होंने कमेटियों में डालकर इसकी छानबीन की जाए। इसके साथ साथ अगर फौरी तौर पर नए मेयर और नई काबीना आने से पहले अगर इन्हें मुलाजमतें न मिली तो हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है दमादम मस्कल अंदर शुरू हो जाए। बिल्कुल, जुल्फ़िकार शाह कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध हो या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उनको अगर शहर को संवारना है तो मुलाजमीन के मसाइल भी हल करने की ज़रूरत है। सदर परिंदा मार्केट में अनवाउ इकसाम के परिंदे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। इतवार के रोज़ परिंदा मार्केट में परिंदों के शौकीन अफराद का खूब रश लगा हुआ है। तफसीलात बताएंगे राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, परिंदों के शौकीन अफराद के लिए सदर में परिंदा मार्केट में सजाई जाती है ये परिंदा मार्केट, जहाँ पर अनवाउ इकसाम के तोते, बिल्लियाँ, बंदर वगैरह यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि आपकी इस परिंदा मार्केट में कौन कौन से तोते वगैरह मौजूद है और कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ पे रिने के, ग्रे रिने के, वाइट रिने के और लबर्ड्स है, कोकटेल है, मखावे, ककाटुए, सब जो रॉयल्टी होता है। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि आज इतवार का दिन है तो ज़्यादा आज के दिन ज़्यादा रश होता है या फिर ऐसे नॉर्मल दिनों में ज़्यादा ही होता है? नहीं, इतवार के दिन ज़्यादा रश होता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक खरीदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे? भाजी हम तोते लेने के लिए हैं जी। अच्छा, कौन से तोते आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं? ये छोटे वाले, ये जो छोटे वाले, ये ऑस्ट्रेलियन तोते। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद थे और ख़रीदार भी मौजूद थे। उनको दुकानदारों के कहने के इतवार वाले दिन जो है खासा रश नज़र आता है, जबकि ख़रीदार जो है उनको भी काफ़ी अनवाउ इकसाम की यहाँ पर परिंदे मौजूद मिल जाते हैं और ख़ासतौर पर अभी जो यहाँ पर आए वो ऑस्ट्रेलियन तोते लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी, शहर कायद के अवाम ने छुट्टी के दिन इतवार बाज़ारों का रुख कर लिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इतवार बाज़ार में सस्ती अशिया मिलती हैं। तफसीलात बताएंगे हिराजा बीन। जी बिल्कुल, शहर कायद में यकबख्ता हवाओं का राज है। दिन ब दिन शहर कायद में सर्दी में इजाफा हो रहा है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए शहर कायद के जो बासी हैं वो इतवार बाज़ार, हफ्ता बाज़ार या लुंडा मार्केट्स का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोटन मार्केट के इतवार बाज़ार में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है स्टॉल्स जो हैं लुंडे के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरी मुनासिब कीमत पर भी गर्म कपड़े दस्तयाब हैं। मेरे साथ इस वक्त शाहजेब कुरैशी जो कि यहाँ पे बच्चों के और बड़ों के जो कपड़े हैं सर्दियों के उसकी स्टॉल लगाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि सर आप बताइएगा कि किन कीमतों पर आप यहाँ पर बेच रहे हैं? क्या ये लुंडे के कपड़े हैं या नए कपड़े हैं? ये नए कपड़े हैं। ये फैक्ट्री से आता है 100 रुपये का, यहाँ बिकता है 125 रुपये का।
ये बिलाल चौरंगी और गोदाम चौरंगी और वीटा चौरंगी फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से ये माल आता है। यहाँ सारा होलसेल की मार्केट है, होलसेल में बिकता है इधर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग देख यहाँ पे इतवार के रोज़ ऐसे अगर देखूँ तो यहाँ पे दुकानें हैं, मार्केट है पूरी, तो इतवार के रोज़ आपने यहाँ पे दुकानों की मार्केट के बीच में ये स्टॉल्स लगाएं, तो यहाँ पर आपको KMC वाले तंग तो नहीं करते? नहीं, इतवार के दिन बिल्कुल तंग नहीं करते, सब बंद होता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि देखने में आया है कि आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 35 रुपये, तो आपके कारोबार पे क्या असरात होंगे इससे? अब ये तो महीना खुलेगा तो पता लगेगा। अभी तो 2023 का दूसरा महीना चल रहा है, पहला महीना ख़त्म हुआ है। अब जैसे ही महीना खुलेगा लोगों को तनख्वाह मिलेगी तो कारोबार का भी एक दूसरे के साथ निज़ाम बन जाता है। जी, हमारे साथ जो है ये एक दुकानदार मौजूद है जिनका कहना है कि इनके पास जो है होलसेल रेट पर, फैक्ट्री रेट्स पर जो है मुनासिब कीमत पर गर्म कपड़े बच्चों के दस्तयाब हैं। चौथी कमिश्नर कराची मैराथन में बहावलपुर की निमरा इकबाल ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को अबूर किया। सहरिश खान दूसरे और महानूर फातिमा तीसरे नंबर पर रहीं। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं निशान पाकिस्तान सीवी पर मौजूद हूँ जहाँ पर कमिश्नर कराची मैराथन रेस इख्ताम पजीर हुई और जो लड़कियों की कैटेगरी में जीता है निमरा इकबाल ने, ये कराची की नहीं है, बहावलपुर से इस रेस में हिस्सा लेने आई थी और बड़ी तैयारी इन्होंने की थी। हम इनसे जानेंगे कब से ये मेहनत कर रही थी। निमरा, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप बड़ा टाइटल जीती, चैम्पियन रही, सबसे तेज़ रनर का एजाज़ भी आपने हासिल किया, ट्रॉफी मिली, 50,000 रुपये मिले आपको। कब से तैयारी कर रही थी इस इवेंट के लिए? बेसिकली मैं मैराथन की प्लेयर हूँ क्योंकि मेरे कोच हैं, उन्होंने मेरी तैयारी करवाई हुई है और 3 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग में करते हुए। ओपन ही मैं खेलती हूँ, कभी यूनिवर्सिटी के थ्रू खेल लिया या कभी डिपार्टमेंट की तरफ से। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? IUB इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर। बेसिकली जो मेरा घर है वो फटाबाद से है, लेकिन मैं स्टडी और अपनी ट्रेनिंग की वजह से मैं भावलपुर होती हूँ। अच्छा, तो आप समझती हो कि जो वुमेन हैं या मैन हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप समझती हो क्या मुश्किलात हैं कि ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो पाकिस्तानी लड़कियों की, लड़कों की एथलेटिक्स में? जी बिल्कुल, जैसे कराची है बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया, और यहाँ पर आए दिन मतलब कोई ना कोई कंपटीशन होते रहते हैं। बेनिफिट होना चाहिए कि छोटे सिटीज़ में रहने वालों को, जैसे हम लोग पंजाब से आए हैं, अगर यही इवेंट पंजाब में हो तो हमारे प्लेयर्स को जो ट्रेनिंग करते हैं, हमारी अकेडमी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मतलब प्लेयर हैं, ट्रेनिंग करते हैं हमारे कोच, जो हम बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, या जो उन्हीं का नतीजा है कि हम लोग मतलब ये इस मुकाम पर आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम भावलपुर में भी ऐसी मैराथन होनी चाहिए ताकि स्पोर्ट्स बहाल हो सके आगे। आप क्या कहेंगे, कितनी खुश हैं अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कि वो जीती हैं? जी, मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे मेरी ख्वाहिश भी थी कि भी ये चैम्पियन बने। अच्छा, हमारे साथ जैसे KPT की मेन स्पोर्ट्स की सरबरा नरमीन अली भी मौजूद, हमसे बात करेंगे। नरमीन, किस तरह आप समझती, कितना हौसला अफजा इवेंट था, रिस्पांस कैसा रहा शहरियों का, आप खुद इसमें शामिल रही इवेंट में? देखें, ये बड़ी एजाज़ की बात है कराची के लिए कि पहली बार हमने चौथी बार ये मैराथन ऑर्गेनाइज़ की और इससे पहले भी मैं बाकी 3 मैराथन का हिस्सा रही हूँ। खुशी की बात ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारी स्ट्रेंथ में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ कराची के लेवल पे ही लोग पार्टिसिपेट करते थे, जबकि अब पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना भावलपुर इवेंट के, हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात ये है कि ये जो मैराथन है ये सिर्फ अब नेशनल लेवल पर नहीं रही बल्कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हो गई है। शुक्रिया। सुना आपने कि ऑफिशियल हों या एथलीट दोनों बड़े खुश हैं इस इवेंट के इनेकाद से। उनका कहना था कि ऐसे मुकाबले होने चाहिए ताकि जो एथलीट्स हैं उनका टैलेंट और इम्प्रूव हो, और ऐसे मुकाबले होंगे तो पता भी चलेगा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी हर जगह जाएगा। और ये रफ्ता रफ्ता खुद बता रही हैं ऑफिशियल नरमीन अली कि ये बेहतर होती जा रही है और ऐसे मुकाबले होंगे तो यकीनन परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और मैराथन का स्टैंडर्ड तो खैर 42 किलोमीटर का होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रेस वहीं बढ़ जाएगी। जी, 8वीं ऑल पाकिस्तान HEC आर्चरी चैंपियनशिप में दूसरे रोज़ मुकाबले जारी हैं। आर्चरी चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर की 8 यूनिवर्सिटीज़ हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात बताएंगे ताबिश मीर। कल इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये डॉ यूनिवर्सिटी से, जहाँ आप देख सकते हैं कि आर्चरी के मुकाबले हो रहे हैं और ये 8वीं आर्चरी चैम्पियनशिप पे जहाँ मर्द व ख़वातीन आर्चरी प्लेयर्स हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर 20 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान भर की जिसके खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन जो है उनसे गुजारिश करूँगा शाहजेब रज़ा से कि वो दिखा सके कि मेरे अक़ब में भी इस वक्त भी जो है मुकाबले हो रहे हैं और तैयारियाँ जो है वो भरपूर अंदाज से जो हैं जारी हैं। ख़वातीन जो प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंद आर्चरी प्लेयर्स, उनसे बात भी करते हैं किस तरीके से आज के इस इवेंट को आपने देख रही हैं, एंजॉय किया आज के इस इवेंट को आपने? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया, हमने सीखा भी बहुत साथ साथ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ खेलने से,
और इवन हमारे कोचेस ने बहुत सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मज़ा आया। भी कोई खेल नहीं है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस आता है। तो मैं कहती हूँ कि ये आर्चरी जो होता है वो हमें करना चाहिए। आर्चरी के अंदर हमारी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, फिर हमारा फोकस, हमारा डिसिप्लिन कि हमें कहाँ एम करना है, हमारी साइट जो होती है वो देखनी होती है कि हमारी कहाँ है, और इस तरह से हमारे जो शोल्डर मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, इस वजह से हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था, हमारे साथ मौजूद थी आर्चरी से मुतालिक जो है इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली आर्चरी प्लेयर्स। और अगर साथ ही साथ इस हवाले से बात की जाए, इस इवेंट में जो आर्चरी मुकाबले हो रहे हैं इसकी रेंज ख़ास तौर पर जो है 70 मीटर है, जिसमें जो है खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ताहम ये इवेंट 4 रोज़ तक जारी रहने वाला इवेंट है। जी।